what do they get here? Why would they come here? They should be in Delhi, Bangalore, and all the other cities which are more crowded and a lot of commercial activity happens. So the unique feature I underline again is the technical mentorship that they get from young and energetic faculty of IIT Mandi who are doing cutting edge research in different technology areas. That's why startups come to IIT Mandi. I also welcome staff of IIT Mandi, students of IIT Mandi who have contributed in different ways. Here I would like to tell you a small anecdote. When I did my first training on how to run an incubator back in 2016, I was told a story by our instructor, Dr. Balachandran, and he's here. The story of a big elephant. We were told that you, as in charge of the incubator, have an interesting responsibility. The institute is like a big elephant, and incubator is like a small creature. And this small creature is tied to the big elephant using a very fine thread. And your job is to move the elephant in favor of the creature and make sure the thread is not break. So moving this big creature, enabling support from the institution, from the faculty, from staff, from faculty has been the responsibility that I was given 6 years back. And I'm very happy to share with you that the response that the host institute gave is what has made it possible for the incubator to thrive and be successful and support startups all these years. Also, another bigger elephant is, of course, the state. We have to move the state in favor of the incubator, in favor of the startups to support, and we have received tremendous support from the state government, from the central government as well. We are heavily funded by Department of Science and Technology, by Ministry of Electronics, by Startup India, by state government, various schemes. You saw several numbers on the video that was played. I welcome all the other participants that are here, and I wish that this event is successful, everyone. And lastly, I thank everyone again on the dais for making to the event. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Hussain. Now I invite co-director, Sri Dr. Ashwita Banerjee for this address. Honorable Chief Minister, Sri Jairam Thakurji, our local MLA, Sri Jawahar Thakurji. Online we have Dr. Anita Gupta, scientist, PhD, Dr. Ajay Garji, scientist from MIT, all other esteemed guests, dignitaries, all the delegates, आप सबको मैं स्वागत करता हूं। ये जो HST हिमालयन स्टार्टअप टेक 2022 इवेंट जो हो रहा है, उसमें आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूं। I specifically commend पूरन सिंह कि इन्होंने लीड किया है इस हमारे कैटलिस्ट को, और ये 6 साल की जो जर्नी हम देख रहे हैं, this has been possible because of his hard work, leadership, and he must be applauded. The Honorable Prime Minister Modi ji wants India to flourish in startup ecology. Startup क्यों हम startup करें? डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो कहता है कि हमारा
देश में सबसे ज्यादा संख्या में यंग माइंड है, और द कंस्ट्रक्टिव यूटिलिटी ऑफ यंग माइंड्स तब हो पाएगा जब हम उनको फ्रीडम देंगे, वो कुछ करके दिखाएं। और कैसे वो करके दिखाएंगे, उसके लिए हमें एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है। तो जैसे पूरन अभी आप लोगों को कह रहे थे कि स्टार्टअप के लिए यंग माइंड बेंगलोर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, परंतु इस वैली में कौन आएगा? आईआईटी मंडी, जहां पर सिर्फ पहाड़ी है, रास्ता भी ठीक नहीं है, लोकेशनल डिसएडवांटेज है, बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि जब हम कुछ करना चाहेंगे, उसकी सिद्धांत क्या होना चाहिए? Startup is not to make money. It is not the idea is not that हम बहुत पैसा कमाएंगे इसीलिए स्टार्टअप करेंगे। नहीं, स्टार्टअप हम इसीलिए करना चाहते हैं कि we want to contribute to the society, समाज को कुछ देना चाहते हैं। क्या हमारा पास ऐसे कुछ आइडिया है जिसके द्वारा जो मोस्ट डाउनट्रॉडन है उसको भी फायदा मिले? अगर आइडिया सही है तो पैसा यानी कि वेल्थ सपोर्ट जरूर आ जाएगा। मगर अगर हम स्टार्टअप कर रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए, मेरा ख्याल में मोस्ट लाइकली दैट अप्रोच इज गोइंग टू फेल। अगर आपके पास आइडिया है जिसके द्वारा आप समाज की सुधार कर सकते हो, तो वो आइडिया जरूर उसको मदद मिलेगा। देयर आर सो मेनी कंट्रीब्यूटर्स ऑल अराउंड, सब हैं हमारे साथ, वो आपको आइडिया को पुश करने के लिए मदद जरूर करेंगे, बिकॉज दैट इज द होल इकोसिस्टम ऑन विच इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम हैज इवॉल्व्ड। हमारी भारतीय परंपरा इसी संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ा है और बढ़ते रहेगा। बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई में जब आप रहते हो, आप पोल्यूशन की शिकार होते हो। जब आप मंडी में आ रहोगे तो आप जो नॉइज है वो नॉइज आपकी अट्रैक्ट नहीं करेगा। What kind of noise? Noise is not only air pollution. Noise is also the kind of hype that are being created. आप जब मंडी में रहोगे, you are in the lap of nature. आप देख सकते हो लोगों की जो प्रॉब्लम क्या है, निकट से देख सकते हो, दूर से नहीं, हवा से नहीं। अभी 15 दिन पहले मैं अमेरिका में था, और हर जगह पे टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग। 2020 में 19 और 20 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट कंट्रोल के तरफ से मोर देन 90 साइंटिस्ट एक शोध पत्र लिखे, और उसका एसेंस यही रहा था कि unless the world goes vegetarian, the human species will become extinct. यानी कि मनुष्य सभ्यता नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, अगर हम वेजिटेरियनिज्म को स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि ये लोगों को समझ में आ रहा है कि इस सृष्टि में जो 84 लाख योनि है, इसमें एक इकोसिस्टम बना हुआ है,
और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो हम विनाश हो जाएंगे। तो कोई भी आप क्रिएटिव वर्क आप करने जा रहे हो, फर्स्ट लुक एट द नेचर। हमारा जो नेचुरल संपदा है हम उसको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। हमारा नदियां सूख रही है, जंगल कट रहे हैं, पानी के अभाव है, वी डोंट हैव फूड सफिशिएंसी इन इंडिया। मुझे नहीं लग रहा है कि आज की तारीख में हम पूरे कॉन्फिडेंट है कि हम स्वावलंबी हैं सभी को खाना खिलाने में। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम दैट वी हैव। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं हिमालयन, ये जो हमारी जो कैटलिस्ट की तरफ से जो इंक्यूबेशन हो रहा है, मैं चाहूंगा कि आप इसमें ध्यान दीजिए। बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि मैं आने के बाद आईटी मंडी में कुछ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल एग्रीकल्चर है। आज के जमाना में यंग माइंड दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि इसमें डिग्निटी है नहीं। परंतु हम अगर एग्रीकल्चर को डिग्निटी दे सकते हैं, कैसे देंगे? अगर टेक्नोलॉजी अगर आ जाएगा तो एग्रीकल्चर में डिग्निटी भी आएगा। आज की जमाना जो है टेक्नोलॉजी की जमाना है, तो इसीलिए when we intertwine agriculture with the technology, immediately people will feel this is also a very dignified occupation, और ये जरूरी है। मैं चाहूंगा कि क्लाइमेट कंट्रोल एग्रीकल्चर में हर किसान हिमाचल प्रदेश का 4 गुना 10 गुना मुनाफा उनका हो, आयात हो। और ये नहीं है हिमाचली जो है सारे भारतवर्ष को खाना खिलाए। ऐसे और भी बहुत सारे पहलू है, जैसे कि बायो एनर्जी है। आप जानते हो कि नहीं पता नहीं, 2007 में पहला बार विश्व में जो नंबर ऑफ रूरल पॉपुलेशन बिकेम लेसर देन द अर्बन पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन इतनी बढ़ गया था, वो 2007 में हुआ। ये 2022 यानी कि अर्बन पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है। और उसके साथ साथ बिल्डिंग्स, घर, उनकी डिमांड बढ़ गया। उसकी वजह से एनर्जी, इन 2007 the buildings used to consume more than 40% of total energy। 40% से ज्यादा एनर्जी सिर्फ बिल्डिंग यूज्ड टू कंज्यूम। ये 2007 की आंकड़ा है। अब 2022 में उसको देखा नहीं, अभी आंकड़ा क्या है। तो यानी कि एक पहलू भी है बायो एनर्जी। हम कैसे हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको संभाले बाय क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल प्रोसेस। तो इसी तरह एक हम सेंटर खोले हैं आईआईटी मंडी में, जिसको कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ एप्लीकेशन। कहा जाता है कि 2025 में भारतवर्ष में मेंटल पेशेंट, मानसिक रोगी जो है उनकी संख्या बढ़ जाएगा। ये नंबर 1 हो जाएगा सारा विश्व में। और इसकी दवाई है नहीं, अभी एलोपैथी में इसकी दवाई नहीं है। इसकी कारण ये है कि मॉडर्न साइंस में मन एक सटल एनर्जी है, जो कि भारतीय सिद्धांत है, इसकी ज्ञान है नहीं। मन एक फंडामेंटल एंटिटी है, ये ज्ञान आधुनिक विज्ञान में है नहीं। इसीलिए इसकी
ये जो मानसिक रोगियों की चिकित्सा हम सुचारू रूप से कर नहीं पा रहे हैं. At best we give them sedatives, sleeping medicine, that's all. But हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम में योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा ये सब है इस रोग को हल करने के लिए. हमारा TIH टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन किए और इसका एक माइलस्टोन यही है कि हम इन मेंटल हेल्थ के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी आगे लेके जाएं और उसको कमर्शियल वायबल बनाएं. तो मैं चाहूंगा कि जो भी स्टार्टअप आप लोग कर रहे हो, दिस इज ए कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट फॉर द यंग माइंड, परंतु हमारा जो पर्यावरण है, हमारा इकोलॉजी है, उसके ऊपर ध्यान दें. And I'm very happy that Puran has kept these things in mind. और उसकी एक सपना है जैसे सिलिकॉन वैली अमेरिका में है, ऐसे हिमालयन वैली स्टार्टअप के नाम से विख्यात हो. मैं चाहूंगा कि देश भर से क्या विदेश से भी लोग इधर आकर स्टार्टअप करें, क्योंकि इतना सुंदर एम्बियंस कहीं नहीं मिलेगा. और मोड ऑफ गुडनेस, ये जो सात्विक वातावरण होता है, ये सात्विक चारों तरफ फैला हुआ है और सही दिशा मिलता है जब हम सात्विक वातावरण में रहते हैं. तब हम लोगों की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको हम ढंग से देख सकते हैं और उसके ढंग की इलाज भी हम कर सकते हैं. इसके साथ मैं आप सबको स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि कैटलिस्ट की तरफ से ये जो HST 2022 की आयोजन किया गया है, ये सफल हो और आप सब नया उत्साह के साथ, नया ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारा देश को आगे ले जाएंगे. धन्यवाद. Thank you, sir, for your encouraging and motivation work to our entrepreneurs and mentors. Now, I would like to invite Dr. Ajay Garg, Senior Director, Ministry of Electronics and IT. Sir is heading the Humanity Startup Hub, which is enabling support across country through various incubators. In the startup at IIT Humanity Catalyst, have also benefited through the TIDE scheme enabled by Ministry of Electronics and IT. Instead of Puran thanking me for coming here, let me thank him and Professor Behra for inviting me to such serene environment. I feel myself disabled because of the fact IIT Mandi never existed at the time I graduated. So like the Honorable Director here, we were in a very hot and environment in Kanpur. So we missed out IIT Mandi that time. Honorable Chief Minister, Sri Jairam Rameshji, Honorable MLA from the local region, Thakur Saab, Professor Behra, Puran, other dignitaries sitting on the dais, and dear friends and faculty members. The Indian startup story has shown a huge success in the last 8-10 years, with a number of startups around being 600 in 2014, increasing to 70,000 plus, 75,000 plus as of date. The number of unicorns from no one of them of the 600 being unicorn, with more than 110 unicorns in this country. A large Indian young minds believing in they themselves being entrepreneurs rather than being employed. So solving the largest Indian problem of employment.
But what is different for India as compared to the global or the Silicon Valley, which everyone talks about, is that whereas the Silicon Valley gave a better experience to the consumers through Facebooks and Twitters and Googles, what our 75,000 plus startups are doing is solving the real-time problems on the ground through frugal, low-cost solutions. That's the difference between the Indian startup ecosystem and the Silicon Valley. And that we all should be proud of. And that what we need to see, that how can we create a IIT Mandi catalyst which is exponential, which has a potential to be exponential, where all of these 60 startups decide to stay back in spite of the fact that they are getting no seed fund or no financial support as such. Can we find a reason for that? Yes, we can. We are all sitting here, which can be the enablers for this. None of our startups require funding as a basic reason for they participating in the startup ecosystem. What they require is the right mentorship, right background for technical support, and the biggest challenge is for them to have the first proof of concept or first POC or a paid POC done by them, by the right stakeholder for their businesses. If we can solve our procurement policies both at states and center, where the startups get an initial advantage to the fact that they can enter and prove their solutions, because government happens to be one of the largest procurers. If our corporates decide to give them a paid POC, if we give them a chance to test their solutions on the environments around that for which they have made their solution, if I give them access to the drones to fly around this valley, and these drones can actually change the life of this, the Himalayan region. I know, I come from Dehradun, so how difficult it is at times to reach the remotest of places in this mountain region. What we require is to enable few of the things, where the state and the center, many of the states, including the Himachal Pradesh, has done this correctly. They have amended their procurement policies, and that's the basic enabler, and that's what you should know, that you should come to here and do job. Many of the states don't even give you a chance to actually showcase or do a proof of concept with your products. So that's what few of the things that you should do. The center is doing, most of the RFPs have been changed, the conditions on the GEM where you don't have to give a bank guarantee or earnest money for participating in government processes, the number of challenges, the Honorable Prime Minister himself pushing everyone to actually make everything possible for the startup ecosystem is already there. We at MIT, we created a lot of schemes to support, including the DICE scheme, the STPI, which was the biggest enabler of 200 billion IT industry, is now being used as an infrastructure for startup promotion. And at the end of it, we came up with the MIT Startup Hub to actually interconnect all the tech startup support system. Everything is being done. There are help desks which are there in the ministry to look at your day-to-day problem. But we need to, what we need to is come together, make you feel confident and make the journey an easier place to know. We as a center will always be there with you in this journey of yours, and I hope and I wish IIT Mandi Catalyst and the whole startup community a very healthy journey forward. Thank you. Thank you, Dr. Raghav, for your tremendous support in the heritage movement today. Now I would like to invite Dr. Rita Gupta, Head of National Science, Technology and Entrepreneurial Development Board, has been instrumental in developing the entrepreneurial ecosystem. NSTDP is the pioneer in setting up a network of incubators at the grassroots level across the country, and with the largest network of incubators across the country, has made a big role in developing the entrepreneurial ecosystem. Ma'am
rightly pointed by the speakers, has been the Startup India initiative which was led by our Honorable PM, and we really analyze the way startups are now going to change the face of India, and we are in very unique position as a country because of the diversity of problems which we are facing, and one who has witnessed the way we as a nation have dealt and tackled the pandemic-like situation, and we are very fortunate that our startups are also in the forefront of coming out with a variety of solutions to tackle this. And we had a program known as Kavach, which we launched, and 50 startups we supported in this last 2 years, out of which 60% of the products are already in the market, whether it's a ventilator product or it's bioinformatics solutions. So to name, we have multiple examples to showcase how we are actually tapping and honing the skills of our startups, and connecting them with the right set of stakeholders to take forward their journey from ideation to market. If we see now, as also pointed out earlier, startups are not limited to metros or capital cities. They are not releasing tier 2, tier 3 kind of cities, and as a testament to this fact, I see Mandi, the way this is coming up. We through our Nidhi program, which we rolled out as a part of our Startup India initiative, has really come a long way. Under the Nidhi program, what we have tried to really factor in are the various programs which enable innovation, integrating various components to innovation and market value chain. So be it idea, one has an idea, how do I get funding to convert it to prototype? And this has become a flagship and a pipeline to our startup activity and incubation activity. Today only our scheme has inaugurated the Prayas Shala. So this Prayas program is a very good feeder program for startup activity. So far, under the Prayas, we have supported close to 1,000 innovators, and 70% of founders startups, and close to 360 patents have been filed under this program. And the Startup India program has fueled a lot of activity in our the whole nation. The way Government of India, various departments, state governments and institutes have really joined hands for this common mission is really exemplary, and I must compliment the government of Himachal Pradesh, the way they have really come out with both startup schemes and programs which will go a long way in enabling and positioning Himachal as a destination for startups. As per the Startup India state ranking released this year, Himachal has already emerged as a pioneer leader in the domain of startup ecosystem. IIT Mandi, which we had supported in 2016 as a part of our Nidhi program, was the first incubator in the state of Himachal Pradesh, and it's so heartening to know the kind of activities they are taking in our activities to talk of the situation. The progress is really good, and I am told that 50 startups have been nurtured to this incubator program, and as a part of another initiative, Technology Innovation Hub, under the initiation of interdisciplinary scientific system, with the focus on human interface has also come up. We have 25 such technology-related innovation hubs across the country. So all these together are going to really change the face of technology, and how do we really nurture innovations and startups built around various technological domains which we are trying. I have also told that Dr. Puran economy, that Command Valley, which he aspires to make a Silicon Valley of Himalayas, will be a reality in the years to come, because our efforts are already in those directions. We have supplemented this incubator with a variety of Nidhi components, be it entrepreneur residence. It was the first program which we supported to
enable young talented minds who really translate them to would be future potential entrepreneurs for fellowship program. This was the fellowship program instead of opting for placement and job. We can enable them to work on an idea for a year or so. They could come out as confident about the idea that works, value in the market, and then they can go in for a formal startup process, registration process, etc. So these PIR and Prayas programs really fill the space of pre-incubation activity, and they are really contributing a lot in supporting the entire initial value chain from ideation to startup formation. We have also added components of seed support to startups. IIT Madrid also beneficiaries of this program, and we are also supporting port-based acceleration programs. So together, these components of Nidhi are really making contributing to startup ecosystem. Recently, on 12th of August, we had organized to commemorate the Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of independence. We had DSC Startup Mahotsav. We have released publications of top promising 75 startups and various components of Nidhi. And there were some startups who could find a case from IIT innovation, which were integrated from IIT category. So, huge components to the entire efforts of IIT Madrid. Also, we had the startup expo, 75 startups, and there were 3 startups which took display their products in the expo. So going forward, as we know, we are working with our nation aspires to be Atmanirbhar. We have to be self-reliant in multiple ways. We have to tackle diverse range of challenges in the country. And startup is already there is not enough hope in the power of our youth, power of technology, and power of starting up. So we should all, as a collective mission and as shared purpose, we should collectively work to make this dream a reality of many startups. I wish success to all the startups who have been part of this Himalayan startup trek, all the mentors, faculty who have been engaged and holding these startups, because I believe startups in the years to come will be part of scripting the growth story of India. And my first compliments to one and all. Thank you. Thank you, Darren, for giving our visit and your continued support. I'm happy to share with you and all the that today, Honorable Chief Minister has inaugurated the Prayas, which is the state of the art prototyping lab dedicated to entrepreneurs, startups who want to build their hardware with the fund of rupees 1 crore provided by Department of Science and Technology under the Prayas program. This lab is now available for the use of entrepreneurs in related categories. कार्यक्रम के सिलसिले में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे दंगन विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री जवाहर ठाकुर जी को उनके लिए आज इस IIT कमान में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, यहाँ के निदेशक श्री लक्ष्मीधर बेहरा जी और यहाँ के श्री वीरकांत कृष्णन जी, हमारे औद्योगिक विभाग के निदेशक श्री राठी कुमार प्रजापति जी, यहाँ हमारे मंडी के डीसी श्री चौधरी जी, एसएससी श्रीमती अग्निहोत्री जी, श्री डी कुशवाहा ठाकुर जी, श्री राजमल जी, और इस कार्यक्रम में सभी हमारे यहाँ के डॉक्टर, सभी साइंटिस्ट, सभी प्यारे बच्चे
कोशिश कर रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि एक नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुला है और तकरीबन 12 वर्ष हुए हैं। इससे पहले यहाँ का क्या था, यहाँ घोड़ा फार्म हुआ करता था और यहाँ डेयरी फार्म हुआ करता था, लेकिन जो 12 वर्ष पहले यहाँ पे आया है वो अभी महसूस नहीं करेगा कि यहाँ पे इतना बड़ा कम्प्लेक्स और इतना बड़ा एक छोटा कस्बा ही बस गया है। मैं समझता हूँ जो 12 साल पहले यहाँ पे आया और आज की परिस्थिति को देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। आज यहाँ पे हमारे क्षेत्र इस संस्थान खुलने के बाद यहाँ सैकड़ों लोग हमारे इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको यहाँ स्थायी तौर पर भी यहाँ रोजगार मिल रहा है। और आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको इस परिसर में, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो चाहे दूसरे काम करने वाले लोग हैं, उनको इस परिसर में काम करने का मौका मिले। और जब से हमारे डायरेक्टर साहब आए हैं वो सोचता था बहुत अच्छे संस्कारी व्यक्ति हैं और पीछे और आज के उसमें मैं समझता हूँ बहुत अंतर है। और हमारी बात को और सबकी बात को मानने वाले ऐसे व्यक्ति हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ हमारे दो और भी जो छोटे मोटे शिक्षक के विषयों को भी पूरे करने की कोशिश करेंगे। और मैं कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और यहाँ जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हमारा यहाँ पे है, से मैं समझता हूँ कि भौगोलिक परिस्थितियों से और वातावरण के हिसाब से जो हमारा कमान का क्षेत्र है, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर स्थान है और पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहतर है। जिला है, हेडक्वार्टर भी नजदीक है और यहाँ पे तो अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन एक चीज मुझे कम खल रही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपका एक जो आप बदले एयरपोर्ट खोल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है इस संस्थान के लिए और टूरिज्म के माध्यम से देखते हुए, इस क्षेत्र को देखते हुए। बल का जो आपका प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट जो हमारा बन रहा है, आप बनवा रहे हैं इसको, आने वाले समय में उसको और तेजी से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा हर ऐसे लोग, हमारे जो क्रिएटिव लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, हमारे जो साइंटिस्ट आते हैं, उनको आने जाने की सुविधा हो। बहुत बड़ी मुश्किल होती है, अभी सड़कें हमारी बहुत दयनीय हालत में है। ये मेरा एक डिमांड के रूप में, इस कार्यक्रम में डिमांड के रूप में आपसे निवेदन करना चाहूँगा। इसके लिए यहाँ से संस्थान से भी मैं चाहूँगा कि आप केंद्र के लिए भेजिए। हाँ, इसके लिए बहुत जरूरत है इस बात की ताकि हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रोजेक्ट है उसको जल्दी से जल्दी उससे चलाया जा सके। और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जगह बहुत है, अब हमारा लोगों का आना जाना भी इसी परिसर से होता है, दोनों जगह से हमारे लोग जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में एक कपूर हमारा नदी बनेगा जिससे हमारा जो नीली ने बनाया वाला सड़क के उस तरफ जाने के लिए होगा और एक हमारा नांदल में भी ब्रिज का निर्माण किया जा सकता है ताकि हमारा प्रसिद्ध हुआ बिल्कुल हमारे हस्तक्षेप के बगैर रखे। अभी पहले बात चल रही थी, डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि हमने अपना एरिया का डिमार्केशन करनी है, तो उसमें आपका जो यदि आपका एरिया आपके पास होगा तो सिक्योरिटी के हिसाब से वो बेहतर होगा। ये भी मेरी आपसे मांग रहेगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, खासकर डायरेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ 6-7 ग्राम पंचायतें हैं, मगर ये भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत यहाँ सीधे साधा लोग रहते हैं और हमारा खेती बाड़ी और पशुपालन हमारा धंधा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम खेती बाड़ी में पैदा करते हैं, हम दूध दही पनीर यहाँ से बहुत जाता है, तो एक काउंटर ऐसा या आप बाहर एक जगह दे दें अपने पास में ताकि एक काउंटर हमारा जो किसान पैदा करते हैं उसको बेचने के लिए ऐसा काउंटर यहाँ पे प्रदान किया जाए ताकि हमारा खोआ पनीर दूध दही और हमारी सब्जियां वगैरह उसको भी बेचने के लिए ताकि हमारा फल फ्रूट हो। यहाँ का जितने भी हमारे लोग हैं बहुत ज्यादा संख्या में आए हैं ताकि हमारे लोगों का एक काउंटर खोल के लोगों को भी हम बेचने के लिए एक मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि आज इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आग्रह करेंगे। और एक बात जरूर है, कहा है जैसे मोदी जी भी कहते हैं कि आने वाले समय में हम किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, 4 गुना करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले किसान है, फिर जवान है, उसके बाद विज्ञान है। किसान विज्ञान और जवान का बहुत निश्चित हिस्सा है और इसी वजह से आज हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है।
मैं इतना ही कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी आप एक बार फिर दूसरी बार इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं अपनी ओर से और हमारे क्षेत्र की जनता की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद जय हिंद। और एक बार मुख्यमंत्री इस जो बरसात में सबसे ज्यादा नुकसान दरअसल विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, इसमें कम से कम 10 लोग हमारे 10 लोगों की जान नहीं है। सबसे ज्यादा जाने इस बरसात में गई तो दरअसल विधानसभा क्षेत्र में गई है। आने वाले समय में हाँ भी आपने दौरा भी यहाँ किया है, तौला में आप आए हैं, पार्टी में हम आए हैं और यहाँ 2-3 बार ऐसा हादसा हुआ है। आने वाले समय में जो भी उचित होगा उसको आप मदद करेंगे सरकार की तरफ से, ताकि हमारा जैसे वाला हमारा लोगों को हम विश्वास दिलवाएंगे। एक बार फिर आपका धन्यवाद। जय हिंद जय हिंद। Thank you, Prabhu, for your kind words. Now moving to the main part of the program, we are over the last few months, we have been reaching out to more and more startups across the country. And in the last month, we have itself have more than 500 pitches. Our team and the expert panel have heard that. Even yesterday, more than 40 experts, jury panel heard 60 teams which came from 16 different states of India, and it is for the Himalaya Startup Grand Challenge finale. So we have, the jury has given their verdict, and now we have the winners of all the 3 thematic areas. We will have the first, second, third prize winner in each of the thematic area. Apart from the jury communicated that the competition was very tough. Like we have almost all the startups were at a very good stage, and it was very tough to decide who are the winners. So apart from the winners, also the jury have also decided that some of the team is also deserved to be supported with different programs. So they have also mentioned those teams. Now I request Chief Guest of today's program, our Honorable Chief Minister, Jala Thakurji, to give a word to the jury. I request Dr. Beraji to assist, sir. I also request Dr. Gurudhar, Project Director of Technology Innovation Hub, to join our dignitaries on the stage to facilitate the winners of first thematic area, which is human computer interaction. So the moment of announcement is here. For the first thematic area, human computer interaction. Thank you, Didi. Okay. So the moment of announcement is here. The third prize winner of the first team for team 1 human interaction. The winner for the third prize is Team Search Grant. And we would like to believe another team to come up. So the Team Search Grant is building a device, a security device which fits in the center of commercial establishment shops to monitor and update the source of the delivery using IoT technology. I congratulate your team. The second prize winner is Team Nema.ai, founded with me. The team is developing comprehensive learning platform for kids with neurodivergent between the age of 5 and 13 with using various computer intelligence technology. And the first prize goes to Team Sunbox Innovation LLP, founded by He is developing for blind and visually impaired persons
team is developing camera-based visual device that translates user word into audio form using camera-based technology. So apart from these three winners, jury found out that there are three other teams who were good enough to be supported with our advanced programs. The first accelerated program under the Technology Innovation Hub for SKI startups. I will announce the name of these three teams and request they can come in front. So I invite all the three teams to join on the stage. The first team is Team Parathesis Systems Private Limited, founded by Mr. Raman Kanwar. Team is developing a human-machine augmented intelligence platform that enables data analysis cycle orchestration to maximize management margins for the manufacturing industry. The second team is Team Viewers Health Solutions Private Limited, founded by Mr. Sanjay Mahathir. The team is developing a SaaS platform remotely using photography without internet for the user and hospitals. The third team is Neuronics Private Limited, founded by Mr. Sanjay Mahathir. The team is developing expertise to hospitals and clinics to reduce the turnaround of diagnostic from 18 minutes by using AI and precision robotics to give report 10 minutes. So I would like to share a note from the jury. The reason we don't have a right to give this because the jury they are bigger than this award. These things are linked to go by academic program and therefore the jury was accommodated. They announced all these things and the first prize winner. And then I thought this is a cash prize they were already available in the roads and there will be a lot of money as well. Those who do not have the arrangement money, but we thought they are bigger than the financial and that's why we are calling them more than 1 crore rupees from investors. And this is the second batch of the AFL program. Now, I will tell all the students to come on the stage to take a picture with all of the degrees. Now moving to the winners of next team, the second team built for Himalayas, which is keeping in mind that the solutions that are going to cater to the Himalayan region. So the third prize for this team, the jury has selected two teams for the third prize. I will request both the teams to come on the stage. The third prize, the first team is Odyssey India Private Limited, founded by Prayasuja Kaluda. The team is developing 3D guiding and internet web application. The second team, which won the third award, is Atulsiya Megastore Private Limited, founded by Mr. Shahab. The team is developing a social marketplace that is customized and used for artisans and brands that solve problems of promoting and selling handicraft items to worldwide customers. The second prize for this team goes to Team Web Tech, founded by Mr. Manmohan. There
Therapeutic protocol collection and successful treatment for non-food activities to solve field harvest time losses using collection and portable successful equipment. The first prize goes to Team Binary Europe, founded by Mr. Prabhat Thakur. This is the developing country UAV devices for convenience for agriculture and logistics sector for problems like surveillance of remote places, spraying pesticides in agricultural fields, and coordinating in remote places. Now, moving to the third theme, which is the environment sustainability. Again, so I would like to note that the jury has given special mention for Team UKHI Hem Foundation, founded by Mr. Tushar Vivek, under this category of Built for Himalayas. UKHI Hem Foundation is developing biodegradable carbon negative textile bioplast using hemp for customer based in US and Europe to solve greenhouse gas emission of fashion industry using hemp. Now moving to the last theme, which is the environment and sustainability. Again, we have two teams which jury have considered for third prize. I will request both the teams to come on stage. The first team is New Nandiya Technology Innovation Private Limited, founded by Dr. David. This team is developing a novel hybrid water purifier system, especially designed for rural area. It is a low-cost drinking water purification, cooling and natural regenerative technology. I also invite Team Urban Blue Technologies Private Limited, founded by Mr. Last Team. Team is developing a customer treatment plant, management of software for wastewater treatment plants to solve the delays in analyzing and processing the data from treatment plants using a mix of AI and adaptable. The second prize goes to Team Axial Private Limited, founded by Mr. David. Team is developing a regulatory platform that will target both cancer and cancer stages, thereby reducing the chances of tumor recurrence. The first prize under this theme is the team Kinoland, founded by Mr. Bharti and Vijay Mohan. This team is developing grid-scale solutions for energy and gas for power distribution companies to solve big load problems using non-renewable energy generation methods. Thank you all the dignitaries for awarding awards to our winners. After our honorable Chief Minister Sri Jaran Thakur ji took charge of the state of Madhya Pradesh, we have seen
big leap in the entrepreneurial ecosystem development in Himachal Pradesh. He has supported through various schemes and methods the entrepreneurial ecosystem under his leadership. The more than 12 incubator has now operational in the state of Himachal Pradesh, and also the Himachal has grown, has been ranked as the aspiring leader in the, among the states released by the Startup India. Now I would like to invite Honorable Chief Minister, Sir, for his address to the gathered audience. आज इस हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक 2022 के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में माननीय विधायक जी युवा ठाकुर जी, डायरेक्टर डी डॉक्टर रविंद्र बेहरा जी, डायरेक्टर जस्टिस राकेश दत्ता जी, हमारे बीच में साइंटिस्ट अजय जी, पंडित दत्ता जी वर्चुअली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फैकल्टी स्टैटिस्टिक्स डॉक्टर पूर्ण सिंह जी, डॉक्टर वेनेटा कृष्णन जी, यहाँ उपस्थित ठाकुर जी, राजेंद्र जी और उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मुझे इस बात की खुशी है कि IIT दिल्ली अपनी यात्रा पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। आज हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक के इस 6th एडिशन के इस कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में यहाँ आया हूँ और आपने ये अवसर दिया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। पिछले वर्ष वर्चुअली कनेक्ट होकर आपसे बातचीत किए गए थे, लेकिन अब की बार बहुत जोर से आग्रह था कि थोड़े वक्त के लिए ही सही लेकिन आप आए, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा ये एक इनिशिएटिव जो ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है। जब यहाँ हम सब लोग इस प्रकार से मिलना होता रहेगा, आना जाना होता रहेगा, स्वाभाविक रूप से उसे आगे बढ़ने का हौसला भी बढ़ता है और मंजिल के लिए जाने का सफर प्राप्त होगा। यहाँ अभी मुझसे पहले हम लोग कहा जा रहा था कि इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को विशेष जिक्र किया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान तक हम पहले भी बोलते थे, लेकिन अब की बार एक और चीज का हमने ऐसे किया, जय अनुसंधान उसमें बड़ा गया और उसका भाव मुझे लगता है कि बड़ा साफ स्पष्ट है कि आज टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो गया इस दुनिया में, रिसर्च का एक बहुत बड़ा रोल हो गया। ऐसे में हम उस दिशा में आगे बढ़े, रूटीन की चीजें बोली लेकिन हट करके करें, बड़ा सोचें, बड़ा करें, इस भाव के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जय अनुसंधान का शब्द इसलिए जोड़ा मुझे लगता है कि जिसमें आगे हमको रिसर्च के जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे फील्ड्स हैं, उसमें हम बेहतर काम कर सके, वो भारत कर भी रहा
और ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन और तेजी से उसमें आगे बढ़े, ये उसमें भाव है। और उसी तरह से मैं इस बात को भी मैं देख रहा हूँ कि हर क्षेत्र में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ता जा रहा है, और टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ने के साथ साथ में जीवन की, हमारी जीने की सारी पद्धति, प्रक्रिया, उस पर भी उसका असर है, उसके कारण वो सारी चीज़ें भी प्रभावित होकर के आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे में जो हमारे इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं, जहाँ अपने देश में शायद मेरे ख्याल में IIT इंस्टीट्यूशन का नंबर 23 है शायद, अगर मैं गलत ना हूँ, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन से ही उम्मीद की जाती है कि हम और ज़्यादा बेहतर सर्च के माध्यम से आगे बढ़ने के रास्ते क्या क्या तलाश कर सकते हैं, उस पर हम काम करने की आवश्यकता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारा ये कैंपस IIT मंडी का ये कैंपस ऐसा है कि थोड़ा दूर है। दूर का मतलब यही है, दुनिया तो बहुत नज़दीक हो गई आजकल इस दौर में, कि आने जाने का वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है, और आने जाने का वक्त ज़्यादा लगने की वजह से जो सुविधाओं के साथ हमको जिस इंस्टीट्यूशन को जोड़ने की आवश्यकता है, वो मुझे लगता है कि उसमें अभी बहुत कुछ अभी तक करना बाकी है। इसलिए डायरेक्टर साहब मुझसे पूछ रहे थे कि हमारा जो एयरपोर्ट जो है कब तक आएगा। स्वाभाविक रूप से इसकी जरूरत है। आज दुनिया में हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम अपने समय को भी बचाने की स्थिति में, आना जाना हमारा कितना सरल, यहाँ कठिनाई हमारे सामने यही है, जगह बहुत अच्छी है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एक रिसर्च के लिए एक एटमॉस्फेयर आपके पास है यहाँ पर बहुत अच्छा, लेकिन आना जाना दोनों चीज़ें कठिन है। आगे तो पहले तो आना मुश्किल है, और आगे तो उसके बाद जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर के हमको आने वाले समय में सोचना है। तो मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूँ कि हमारा एयरपोर्ट मंडी का जो दौर जो है वो काफ़ी, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं क्लियरेंसेस की दृष्टि से, उनका काफ़ी हद तक उसका रास्ता आगे बढ़ा है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुत जल्दी एयरपोर्ट जो है वो मंडी में जब बनेगा तो यहाँ आना जाना जो कठिन लगता है उसको हम सरल बनाने की स्थिति में हो पाएंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं आज कोई नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरी तो ना साइंस की पृष्ठभूमि रही है, ना कोई इस तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़ करके कोई, लेकिन टेक्नोलॉजी का महत्व को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। हमारे सामने जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में इस IIT के माध्यम से क्या चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दो सेक्टर हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसे सेक्टर हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि अगर हम बहुत सारी फील्ड चुने, ठीक है, सबको अपने अपनी फील्ड में जाना है, उस पर भी हमको काम करना, क्या हम फोकस कर सकते हैं कि हम 2-4 चीज़ें हम तय करें जिनको हम टारगेट करें, फोकस करें, और उसमें रिसर्च के लिए हम जो भी रिसोर्सेज डाल सकें, जो भी हम मेहनत डाल सकते हैं, और उसके माध्यम से बेटर रिजल्ट्स हम दे सकते हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत सोचने की आवश्यकता है, इस पर हमको काम करने की आवश्यकता है। बाकी सभी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं, हर क्षेत्र में जो हमारे जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, वो करेंगे, लेकिन ऐसे चीज़ों को लेकर के, और इसके अलावा जो दूसरा सेक्टर जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है जिस पर हमको करना चाहिए, अभी मैं 4 दिन पहले 5 दिन पहले आपके ही इस कैंपस में यहाँ आया था, उतरा था, तो आने की वजह ये बनेगी कि बारिश के कारण, बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और ये बारिश का नुकसान हमारे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जो हमारा यहाँ का टेरेन है, यहाँ हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी टेरेन है, और
लैंडस्लाइड होते हैं, मैसिव लैंडस्लाइड होते हैं, और उसके कारण जिंदगी भी संकट में हो जाती है। और उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है और जिंदगी का नुकसान होता है। तो उस सिलसिले में मेरा यहाँ आना हुआ था। यहाँ इस तरह की घटना घटित हुई, एक जगह जहाँ 8 लोग एक परिवार के उस लैंडस्लाइड के कारण मकान को नुकसान हुआ, मकान के नीचे दब गए। और दूसरी तरह से यहीं कटौला में आकर के एक ही परिवार के 6 लोग जो है वो उस बरसात की चपेट में आ गए, जिसके कारण उनकी दुखद मृत्यु हुई है। उनमें से 5 बॉडी शायद रिकवर हुए हैं, अभी तक भी रिकवर नहीं हो पाई है। तो उस सिलसिले में गांव के लोगों से मिलने के लिए गया था। मेरे दिमाग में उस दिन भी इस बात को लेकर के थे कि हम यह ऐसे इंस्टीट्यूशन का क्या हम फायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, कि क्या ये संभव है कि इन चीज़ों को समय रहते हम थोड़ा असेस कर सकते हैं, हम इस पर स्टडीज करके किस प्रकार से ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में, बर्फ के मौसम में इन चुनौतियों का सामना कर सके। ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है आने वाले समय के, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। और मैं समझता हूँ कि भी ये सब किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी जहाँ जिस तरह से काम कर रही है, कहाँ कहाँ हम पहुँच गए। तो उसमें जो लाइफ लॉसेस हो रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे और भी नुकसान हो रहे हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं। और तो कुछ नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन कम से कम लाइफ लॉस कैसे मतलब हम उसको बचा सकते हैं, उसको मुझे लगता है कि उस पर हमको थोड़ा काम करना चाहिए, ताकि टाइमली हमको अलर्ट मिल सके, ताकि हम समय पर सारी चीज़ों को लेकर के ये कर सकें, अपने बचाव की दृष्टि से कदम उठा सकें। वेदर प्रोडिक्शन के मामले में आजकल हम देख रहे हैं कि इतनी स्ट्रीट आ रही है इंफॉर्मेशन, 1-1 घंटे की, आधे घंटे की, कि इतने समय में इस तरह का वेदर रहेगा, अच्छी है। लेकिन इस सारी चीज़ को हम कैसे उसके साथ जोड़ सकते हैं, मुझे लगता है कि वो एक सोचने का विषय बनता है। और उस दृष्टि से मेरा आप सबसे इस बात के लिए यही निवेदन है कि इसमें भी हमको काम करना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा उसमें एक बहुत योगदान उसमें आप सबका होगा। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि IIT मंडी कैटलिस्ट स्टार्टअप को एनकरेज करने की दृष्टि से प्रदेश का पहला कदम 2016 में शुरू हुआ था मेरे ख्याल में। और उसमें चीज़ों की शुरुआत हुई थी कि भी जो हमारे नौजवान जो कुछ नया सोच करके, कुछ हट करके करना चाहते हैं, कुछ उनके पास इस तरह की आइडियाज़ हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, उस दृष्टि से हम काम कर सके और बेहतर ढंग से काम कर सके, तो उनको सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमने इसकी शुरुआत की है। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें आगे बढ़ करके हमने काम भी किया है। और उसमें शायद मेरे ख्याल IIT मंडी को कैटलिस्ट के हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 8 करोड़ रुपए की पूंजी से शुरू किया। तो उस वक्त बता रहे हैं जो मेरे पास जानकारी है। और आज हम इस बात को भी देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टार्टअप इंडिया और हिमाचल प्रदेश सरकार ने मिलकर के 70 करोड़ की राशि स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए दी है। इसमें से राज्य सरकार की ओर से जो राशि दी गई है, उसमें 10 करोड़ रुपए की राशि IIT मंडी को दी गई है। हम कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में भी हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम और ज़्यादा सपोर्ट करने की स्थिति में हो पाए। और IIT मंडी, iHub और HCI फाउंडेशन को भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 110 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। और इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जब सारी चीज़ें आपके पास साधन होंगे, सुविधा होगी, तभी जाकर के आगे बढ़ सकते हैं। आप बहुत अच्छा सोचते होंगे, बहुत अच्छा आपके पास नॉलेज होगा, लेकिन उसके बावजूद आप उस सारी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे, तो उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
और जहाँ तक अभी की बात है तो आज के इस कार्यक्रम में जो हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक एक वार्षिक स्टार्टअप कार्यक्रम जो आपने शुरू किया है, तो IIT मंडी की ओर से ये शुरू किया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के सभी स्टार्टअप के लिए बेहतर परिस्थितियाँ देना और अच्छा एक वातावरण देना ताकि वो बेहतर ढंग से काम कर सके। इस बात को लेकर के एक अच्छी शुरुआत हुई है और इस कार्यक्रम हर साल देश भर से लगभग 100 स्टार्टअप और 50 मेंटर्स एक साथ जुड़ते हैं। इस बार के आयोजन में बेहतरीन चुनी जाने वाली 3 स्टार्टअप टीम्स को 6 लाख रुपए की नगद राशि यहाँ पर पुरस्कार के रूप में दिए गए। उस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। जिनको प्राइजेस मिले हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके काम करें, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के कोई बहुत विस्तार से कहने का कोई हमारा विषय नहीं है, मेरा सिर्फ इतना ही है। हम इस इश्यू को और आगे तेजी के साथ कैसे बढ़ा सके और कुछ एक फोकस करके कुछ एरियाज जैसे मैंने कहा वो हमको आइडेंटिफाई करने चाहिए, मुझे लगता है। और उस पर फोकस करके जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसके रिजल्ट्स बेहतर रहेंगे। हम बहुत सारी चीज़ों में काम करेंगे, अच्छा है वो भी बात, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये अगर किया जाए तो उसमें परिणाम अच्छे रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और हमारी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए हर तरह से तैयार है। हिमाचल प्रदेश में हमने प्रयत्न किए हैं, उस दिशा में नए इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है। ये बात ठीक है कि कोविड के एक अलग सिचुएशन हमारे सामने थी, जिसके कारण जो इफेक्टिव हमारी वर्किंग की लगभग 2 वर्ष का पीरियड हमारा जो है वो ठीक प्रकार से उसका हम यूटिलाइज नहीं कर पाए गवर्नमेंट में भी, और इसलिए उसमें तो जो कमी रही होगी सारी चीज़ में उसको हम महसूस करते हैं कि समय की कमी रही हो। लेकिन फिर भी कुछ नए इनिशिएटिव जैसे हमको हिमाचल प्रदेश में हमको लगता था कि प्राइवेट सेक्टर में हमको हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे लाना चाहिए। हमने प्रयत्न किया, कठिन काम था, आज से पहले नहीं किया था किसी ने, लेकिन उसमें हम आगे बढ़े। और मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग हम 41,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग करने में सफल हुए। मैं इस बात का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, अभी प्राइम मिनिस्टर मंडी आए थे, जब 4 साल का हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ तो 28,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग यहाँ पर हुई। तो हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश, लेकिन यहाँ ये सारी चीज़ें करने में सोचते नहीं थे, रूटीन में चल रहा है, सड़क बन रही है, स्कूल बन रहा है, उसको अपग्रेड कर दो, उसको उसकी भवन बनाने की बात है। लेकिन इससे हट करके कुछ इनिशिएटिव लेने की दृष्टि से हमने कुछ किया। ईज ऑफ डूइंग में हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया। हम 16वें स्थान में पूरे देश भर में थे, आज हम 7वें स्थान पर आगे हैं और बेहतर करने की हमने गुंजाइश तलाश की है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के एक नहीं अनेक फील्ड में हिमाचल छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी बेहतरीन काम करने में जाना जाता है। हम अच्छा काम करते हैं और बड़े बड़े प्रदेशों को भी हम जो है वो पीछे छोड़ करके अच्छा काम करने के लिए एक फील्ड में नहीं अनेक फील्ड में हम काम करने में सफल हुए। तो ऐसे में ये हमारा इंस्टीट्यूट IIT मंडी, यहाँ से भी हमको यही उम्मीद है कि कुछ चीज़ें हम ऐसी करें जिसके कारण हमारी एक पहचान बने। IIT मंडी की एक पहचान पूरे देश भर में बने। ठीक है, बहुत पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं उसके अनुरूप जो है वहाँ पर खड़ी हो गई है और वो बहुत एडवांस स्टेज में पहुँच चुके हैं। हम अभी नए हैं, लेकिन नए होने का अभिप्राय ये नहीं कि हम पीछे ही रहें, हम पीछे ही खड़े रहें। हमें आगे बढ़ना है, तेजी से आगे बढ़ना है और ये उम्मीद मैं आप सब से करता हूँ, जो हमारी यहाँ टीचिंग फैकल्टी है उनसे भी करता हूँ और उसके हमारे साथ साथ में हमारे जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टार्टअप में जुड़ करके काम कर रहे हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि हम आगे खुद भी बढ़ें और इंस्टीट्यूट को बढ़ाने में भी अपना कंट्रीब्यूशन दें। उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब इसका फाउंडेशन स्टोन हुआ था, जैसे जवाहर जी बोल रहे थे, तो उस वक्त ये
मुझे लग रहा था कि ये बहुत बड़ा ऐसा क्या कर लिया हम लोग, हम बिल्कुल ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ जंगल ही जंगल है, कौन आएगा, कौन रहेगा, कौन काम करेगा, ये सारी बातों को लेकर के सोचा जाता था उस वक्त। लेकिन धीरे धीरे कैंपस बना और एक कैंपस अब आते जाते हम कई बार हम जब जा रहे होते हैं अपने टूर में तो ये कैंपस दूर से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम चारों तरफ से बिल्कुल प्रोटेक्शन में है, पहाड़ के बीच में है, एक जगह ऐसी जगह है जिसको ढूंढना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी दूर से दिखाई देता है। और मैं समझता हूँ कि बरसात में आगे पीछे हुआ, लेकिन यहाँ ये सारा सेफ है। आप सेफ्टी के हिसाब से मेरा आप सबसे भी निवेदन है, बच्चों से भी इस बात के लिए निवेदन है कि ये वक्त थोड़ा वक्त ऐसा होता है जब आपको बड़ी सावधानी के साथ रहना है, जाना है, ये इस बात को लेकर के आप सुनिश्चित करें। और लेकिन ये कैंपस एक नया कैंपस, ऐसा कैंपस हमारा IIT का जो बहुत सुंदर और सुंदर के साथ साथ में जब सुविधाओं की दृष्टि से अगर एयरपोर्ट हमारा जल्दी आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर से, पूरी दुनिया भर से जो है लोग यहाँ आपके इस कैंपस में आने जाने की सुविधा को लेने के लिए आएंगे, यहाँ सर्च करने की सुविधा को लेकर के आएंगे, काम करने की सुविधा की दृष्टि से आएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और एक बार फिर से मैं आप सबके आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे एक प्रयासशाला का यहाँ पर इनॉग्रेशन भी हुआ, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। The